Okay, so welcome back, students, to maths lecture number 11, plus 2 class, multiplication of matrices, third part. आज ये लास्ट पार्ट होगा मल्टीप्लिकेशन का, और इसमें हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे और कुछ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। सो टुडे वी शैल कंप्लीट द एक्सरसाइज 3.4. So let us start the question number. Next question, let me write here. Okay, so dear students, this is question number 12 of exercise 3.4. For the matrix A, 3, 2, 1, 1 matrix, find the numbers A and B. These are the two unknown numbers which are to be calculated. But what is the given condition? A square plus small a capital A. Small a is the number and capital A is here matrix. Plus b I2 is equal to 0. So let us start the solution. Very easy. This is a given equation. So what we want here in this equation, we need a square. So first of all, we have to calculate the a square. So how do we calculate a square? You know very well. A square is equal to a into a. So put the value of a. It is very simple. 3, 2, 1, 1. Then write again the value of a. 3, 2, 1, 1. Now it's a simple multiplication. You will do it. This implies a square is equal to 3 3s are 9 plus 2 1s are 2. Then 3 2s are 6, 2 1s are 2 plus 2. Okay. So as similarly next 1 3s are 3 plus 1 1s are 1 and 1 2s are 2 plus 1 1s are 1 is equal to, solve it. So this is a square. Now given, what is given? A square plus a plus b I2 is equal to 0. So we shall put the values of all these which we know here. So a square, you have calculated the value 11 8 4 3 plus small a into capital A. Capital A is the matrix, that is 3 2 1 1 plus b, unknown number to calculate, I2. I2 is entity matrix of order 2. So 1 0 0 1 is equal to 0. It is a null matrix. So we shall write it also 2 cross 2 order 0 0 0 0. Now we shall solve all these. So this implies this matrix as it is 11 8 4 3 plus multiply all element by a. I multiplied here all elements by a, 3a, 2a, 1a, 1a. Similarly, multiply all elements by b. Multiplied all elements by b, b into 1b, 0, 0 and b. So this implies now do sum of all these three matrices on the left side. You get here first element added to the first element, 11 plus 3a plus b. Second element added to the second element, 8 plus 2a plus 0. Next 4 plus a plus 0. Then 3 plus a plus b. This becomes your left hand side matrix. On right hand side you have 0 0 0 0.
So since both matrices are equal, so elements must be same. So this implies 11 plus 3a plus b should be equal to 0. Next, 8 plus 2a should be equal to 0. Next, 4 plus a should be equal to 0. Next, 3 plus a plus b should be equal to 0. Okay, so we have to solve these four equations now. Very easy. 8 plus 2a. From here, you can calculate the value of a. Very easy. This a comes out to be 4. Sorry, minus 4. Again, if you will solve this equation, then this will also give you a is equal to minus 4. So substitute this value of a equal to minus 4 in equation 1. Put a is equal to minus 4 in equation 1. So what you get? 11 plus 3 into minus 4 plus b equal to 0. From here you will get the value of b 1. Okay, you will solve it. There is no tough question. So you can check by putting these values in equation number let 1 and this equation number 2. So put both values of a and b in equation 4. Put a is equal to minus 4 and b is equal to 1 in equation 2. So you got 3 plus minus 4 plus b, that is 1, is equal to 0. 3 minus 4 minus 1 plus 1, 0 equal to 0. Hence all equations are satisfied here. So therefore a is equal to minus 4 and b is equal to 1 is your answer. So in this way you solve the polynomial equations of a matrix. So dear students, this is now exercise 3.4, question number 13, second part. Matrix A is given 3 minus 2 and 2 2, and you have to find the value of k so that a square equal to ka plus 2i. So let us do one more question. Again you have to find out here the a square. So let us start the solution. A square find out कीजिए. 3 minus 2 2 2 multiply 3 minus 2 2 2. You will do it yourself. I am writing the answer. Pause the video and solve this question. That is a square निकालिए, यहाँ पर रखिए और फिर वीडियो को दोबारा से ऑन करके देखिए आपने सही निकाला या गलत. So dear, this should be your a square. ठीक है, you will calculate it and then you will check it. Now given equation is a square equal to ka plus 2i equal to 0. Put all these values. Therefore a square, put the value of a square. 5 minus 2 2 0 is equal to k into a. Put the value of matrix a. 3 minus 2 2 minus 2 plus 2 I. Value of I 1 0 0 1 equal to 0. This is not equal to 0. Make it clear. Equation is simply a square equal to ka plus 2i. So it's by mistake. So make here the correction. So now this implies this side as it is 5 minus 2 2 0 is equal to, very simple, multiply by k. 3k minus 2k 2k and minus 2k plus multiply by 2 2 1 2 2 0 0 2. This implies
5 minus 2, 2, 0 as it is. Right side, addition of two matrices, 3k plus 2. Next element, minus 2k plus 0, minus 2k. Next element, 2k plus 0, 2k. Next element, minus 2k plus 2. So you write here the line, since matrices are equal, therefore their corresponding element should be इक्वल। तो यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स हैं आपकी, दोनों इक्वल हैं, तो corresponding एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। सो देयरफॉर 5 इक्वल टू 3k प्लस 2 होना चाहिए, माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2k होना चाहिए, 2 इक्वल टू 2k होना चाहिए, और 0 इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 2 होना चाहिए। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके k का वैल्यू निकालिए, कितना आता है। दिस एम्प्लाइज k इज इक्वल टू 5 minus 2 3, 3/3 1. This implies k is equal to minus 2 cancel 1. This implies k 2 cancel 1. This implies k is equal to minus 2/-2 1 हो जाए। So in all equations you are getting the same value, therefore value of k is equal to 1 is your answer. So remaining two parts you will solve yourself. You have number of such questions. और जिन क्वेश्चन के पास एनसीईआरटी की जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक है, वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंट एक्सरसाइजेज में या एग्जांपल्स में देखकर कर सकते हैं। सो नाउ वी शैल टेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। So dear student, this is the question number 14 of the same exercise and its third part. Find x if मैट्रिक्स की फॉर्म में एक इक्वेशन दी गई है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं आप इसको। So these are three matrices, मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2 एंड मैट्रिक्स 3। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x निकालना है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट से सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा उससे फिर थर्ड को कीजिए, या सेकंड से थर्ड को कर लीजिए, और फिर जो इन दोनों का आएगा फिर फर्स्ट से कीजिए। तो यू कैन डू इट एनी वे। सो लेट अस डू इट डायरेक्टली। पहले फर्स्ट से सेकंड को करते हैं, और फिर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उससे थर्ड को करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। अपने आप क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए। सो सॉल्यूशन, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो वेरी सिंपल, रोज के साथ कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये एलिमेंट्स हैं x इंटू 1, x 1 इंटू -2 फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर x इंटू 0, 1 इंटू -3 एक ही रो है तो एक ही एलिमेंट आएगा, बस खत्म बात। दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स x 5 इक्वल टू 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, x -2 इंटू एक्स, डायरेक्ट लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x -2 को x से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 0 -3 का -3 रह जाएगा, -3 इंटू 5 -15। ये आपके पास एक मैट्रिक्स का एक 1/1 की मैट्रिक्स बच गई, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वल टू 0 हो गया, तो मैट्रिसेस इक्वल हैं, एक ही एलिमेंट है, तो इधर भी आपको क्या लिख सकते हैं आप लोग, मैट्रिक्स एलिमेंट 0 लिख सकते हैं। इधर 1/1 क्रॉस की मैट्रिक्स है ये, तो इधर जो नल मैट्रिक्स बनेगी वो भी 1x1 की बनेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। इक्वेशन के एक तरफ जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, अगर दूसरी तरफ 0 है तो वो मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की ली जाती है।
तो यहाँ पर फिर से वही लाइन लिख देंगे बच्चों आप लोग, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, सेम आ जाएगा यहाँ पे। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। ये हमने पिछले पेज से हमने मैट्रिक्स के एलिमेंट इक्वल टू इक्वेट कर दी, इक्वल टू 0 हो गया। अब एक सिंपल एक पॉलिनोमियल बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर में। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाएंगे, आई होप आप सबको आते होंगे। इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे देखिए, इसके फैक्टर्स बनेंगे आप लोगों के क्या बनेंगे देखिए, एक्स मल्टीप्लाई करें तो -15 चाहिए और ऐड करें तो -2 चाहिए। तो ये आ जाएंगे मेरे -5 इंटू 3 और -5 प्लस 3। ठीक है, -5 प्लस 3 -2, -5 इंटू 3 -15। तो सिंपल एक्स -5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस implies either this equal to 0, x equal to 5, or this equal to 0, x equal to -3. So these are the two values for x in the given question. Hence we solve this type of a question. There are two, three more questions. We will solve all these questions. So dear students, this is the last question of this exercise, and such type of question जो यहाँ पर हमने लिखा है, you are given a matrix A and then show that a I plus b a power n is equal to a power n I plus n a power n minus 1 b a। ये इक्वेशन प्रूव करनी है किसी गिवन मैट्रिक्स ए के लिए। यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, एक गिवन इक्वेशन दी गई है उसको प्रूव करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं बेटा वो आपके मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर बेस होते हैं। +1 क्लास में आपने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। सो कैसे करते हैं, लेट अस ट्राई। लिखिए, लिखते हैं यहाँ पे टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है आप लोगों ने, प्रूव करना है आप लोगों ने ए आई प्लस बी ए पावर एन इज इक्वल टू, दिस इज टू प्रूव एयर ए आई प्लस बी ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन आई प्लस एन ए पावर एन माइनस 1 बी इंटू ए। कैपिटल ए यहाँ पर मैट्रिक्स है। सो स्टेप वाइज स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेप होता है फॉर n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 प्रूव किया जाता है। सो ठीक है, सो यू राइट हियर व्हेन n इज इक्वल टू 1। तो जो गिवन इक्वेशन है इसे 1 लिख लिया हमने, जो प्रूव करना है। तो n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे पुट किया जाता है, देखा जाता है इक्वल आता है कि नहीं आता है। सो लेट अस सी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, a इंटू आई प्लस b इंटू a पावर n दैट इज 1 एज इट इज a i प्लस b a आ गया। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड निकालिए। राइट हैंड साइड में n का वैल्यू 1 पुट कीजिए, a पावर n a पावर 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू a पावर 1 माइनस 1, n का वैल्यू 1 रख रहे हैं, इंटू b इंटू ए इज इक्वल टू a पावर 1 a रह गया, i प्लस 1 इंटू समथिंग वही आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, a पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 ये भी 1 ये भी 1 और ये b इंटू ए इंटू 1 1 b a रह गया। ठीक है, तो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब सॉरी, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब आपका रिजल्ट जो है वो 1 के लिए ट्रू है। सो व्हाट यू राइट हियर, देयरफॉर result is true for n equal to 1। then your starts step number 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, let result is true for n is equal to k सपोज कर लिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस n इक्वल टू k को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देयरफॉर पुट n इज इक्वल टू k इन इक्वेशन 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन, शुरू करते हैं।
n इक्वल टू के इक्वेशन 1 में रखना है आप लोगों ने a इंटू आई प्लस बी ए पावर के इज इक्वल टू ए पावर के आई प्लस के ए पावर के -1 इंटू बी ए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई आप लोगों की, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं बच्चों, याद है कुछ आपको? स्टेप नंबर 3 में हम लोग रिजल्ट को प्रूव करते हैं, किसके लिए? n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या लिखते हैं, नाउ वी check the result for n is equal to k plus 1, ठीक है। दैट इज हम क्या करेंगे, n इक्वल टू के प्लस 1 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। दैट इज पुट n इज इक्वल टू के प्लस 1 इन इक्वेशन 1 रखते हैं। यहाँ पर देखो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k प्लस 1 रख देंगे। सो आई सिंपली रिप्लेस द वैल्यू ऑफ n by k plus 1, again n by k plus 1, n k plus 1, n minus 1 है, n को हमने k plus 1 लिख दिया और आगे -1 आ गया और b आ गया। अब हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन ट्रू है या नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है या नहीं आता है। तो कैसे करेंगे, लेट अस स्टार्ट। सो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये रह गया ए पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 इंटू ए पावर के 1 -1 0 हो गया इंटू बी ए। और ये है आपकी ए आई प्लस बी ए पावर के प्लस 1, ठीक है। सो नाउ दिस इक्वेशन इज टू बी सॉल्व्ड। प्रूव करना है अगर ये ट्रू आती है या नहीं आती है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ left hand side of above equation is क्या है, देखिए ए आई प्लस बी ए होल पावर के प्लस 1। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखो, हम पावर्स को ब्रेक करके लिखेंगे ए आई प्लस बी ए पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो हमने के और 1 की पावर जो थी वो अलग अलग कर ली। इसकी पावर 1 है, डिफरेंस के लिए बता दूं आपको। तो ये ए आई प्लस बी ए आई प्लस बी ए के प्लस 1 हो जाएगा जब इकट्ठा करके लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए आई प्लस बी ए पावर के, ये वो वैल्यू होती है जो सेकंड स्टेप में हमें मिलती है। सेकंड स्टेप से जो वैल्यू होती है उसे थर्ड में हम यूज़ करते हैं। तो सेकंड स्टेप से आप लोग पीछे देख सकते हैं, स्टेप नंबर 2 ये था आपका। यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिली थी ए आई प्लस बी ए पावर के का, ये वैल्यू मिला है यहाँ पर। इस वैल्यू को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो यू राइट हियर इज इक्वल टू राइट द वैल्यू ऑफ ए आई प्लस बी ए पावर के। ये है इसका वैल्यू, ये हमने ले लिया यहाँ से। क्या वैल्यू ले लिया, ए पावर के आई प्लस के ए पावर के -1 इंटू बी ए इंटू सेकेंड टर्म एज इट इज ए आई प्लस बी ए। ये यहाँ पे लिख भी देते हैं हम लोग यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है बेटा। सो लेट अस स्टार्ट। कुछ नहीं किया, पहले पावर्स को ब्रेक किया के 1 में, के और 1 में, और फिर ए आई प्लस बी ए पावर के का वैल्यू सेकंड स्टेप से ले लिया, जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन का तरीका है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है एक एक करके, और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए इज इक्वल टू ए पावर के आई से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ए पावर के आई
इस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए और ए बेस सेम है, क्या बन गया ए पावर के प्लस 1 आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर। फिर फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म के टर्म सभी प्लस में है सारे साइन, ये बन गया ए पावर के आई इंटू बी इंटू ए, ठीक हो गया। प्लस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए के ए पावर के माइनस 1 है और यहाँ पर ए की पावर 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगी, के माइनस 1 प्लस 1 इंटू बी इंटू ए इंटू आई, ठीक हो गया। प्लस लास्ट टर्म देखिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा के ए पावर के माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन को आगे लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया ए पावर के प्लस 1 आई स्क्वायर एज इट इज, प्लस ए पावर के बी इंटू आई ए। यहाँ पे बेटा टर्म्स को रिशफल किया हमने, क्योंकि ए और बी तो कांस्टेंट्स हैं और ए मैट्रिक्स है, आई भी मैट्रिक्स है, तो हम आई का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई इंटू ए लिखेंगे। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, देखिए के ए माइनस 1 और 1 जीरो हो गया, तो ये पावर के रह गई, और आगे आपके पास बी ए इंटू आई आ गया अपने आप ही। प्लस नेक्स्ट स्टेप को लिखते हैं, देखिए के ए पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक आई स्क्वायर आ रहा है, एक आई इंटू ए आ रहा है, ए इंटू आई आ रहा है और ए स्क्वायर आ रहा है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो इनको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यहाँ आगे कर लेते हैं बिकॉज, फिर हम यहाँ वैल्यू ले लेंगे आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर, हमेशा आई ही होता है, स्क्वायर क्यूब जो भी आप करेंगे वो आई ही आएगा। नेक्स्ट है आई इंटू ए, लेट अस कैलकुलेट आई इंटू ए। आई इंटू ए, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स ही हमें मिल जाती है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय आई इज ऑलवेज ए, सेम थिंग इज हियर, a into I is also a into I is also a, but now we have to calculate a square. So what is a square? Put the value of a का वैल्यू हमें गिवन था क्वेश्चन में, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, देखिए 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और ये 0 इक्वल टू 0 हो गया ये। सो ए स्क्वायर का वैल्यू आपका 0 हो गया। वी शैल पुट ऑल दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। सो यू गेट हियर ए के प्लस 1 आई स्क्वायर, you put here I square as I, plus a power k b into ia you have calculated as a, plus k a power k b into ai is also a, plus k a k power minus 1 b square into a square you have calculated 0, so 0 multiplied by something become a 0. So सो नाउ क्या क्या हम लोगों ने जो यहाँ वैल्यूज ली थी हमने वो सारी इसमें पुट कर दी बेटा। तो ये आई स्क्वायर को आई कर दिया, आई ए को आई कर दिया और ए आई को ए कर दिया, और यहाँ पे 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। अब इन दोनों टर्म्स को आप देखें तो ए पावर के बी ए पावर के बी ए कॉमन है इन दोनों में, तो यू कैन राइट देम इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज ए पावर के प्लस 1 इंटू आई
प्लस, अब इसको मैं थोड़ा कॉमन कर लेता हूँ, a पावर k b इंटू ए पावर के बी इंटू ए कॉमन किया, बाद में लिख रहा हूँ कॉमन टर्म। तो यहाँ से k और यहाँ से 1, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो प्रूव करना होता है उसका हिंट लेना पड़ता है कि क्या वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बन तो रहा है जैसे भी है, तो लिखना हमें उस फॉर्म में पड़ता है जैसा आपको प्रूव करना है, ठीक है। सो ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 की राइट हैंड इक्वेशन है। सो लेटर सी जो हमने निकाली हुई है वो क्या है, ये देखिए। जो हमने फाइंड आउट की थी, जिसे प्रूव करना था हमें, वो इक्वेशन ये है बच्चों आप लोगों की। ए पावर के ए पावर ए आई प्लस बी ए पावर के प्लस 1, ये हमने सॉल्व किया इसको, और इसका राइट हैंड साइड मिला ए पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 इंटू ए पावर के इंटू बी ए। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टेप नंबर 1 2 3 मैथमेटिकल इंडक्शन के क्लियर हैं आप लोगों को। स्टेप 3 जब प्रूव हो जाता है तो लास्ट में क्या लिखते हैं आप लोग, लास्ट में आप लोग लेते हो देयरफॉर equation is true for n is equal to k plus 1 whenever it is true for n is equal to k. Therefore, by principle of mathematical induction, it is true for all n belonging to natural numbers। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन जो है वो सभी के लिए आपकी यहाँ पर ट्रू है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। I will give you the questions in my WhatsApp group as well as your WhatsApp group, and you will solve all these questions. So today we are completing exercise 3.4. You will solve questions only up to here. We have some 1 or 2 more questions here. So let us see. So इसे ध्यान से देखिए, बहुत मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक लंबा कॉन्सेप्ट है जिसमें काफ़ी समय ले लिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए इसे और सभी क्वेश्चंस को कीजिए। So it's a 30-minute lecture. It will take about 40 to 45 minutes or 1 hour to you to solve at home. और उसके बाद फिर अपना होमवर्क में ये सारा जो एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व कीजिए, और जो नहीं हो पाते हैं वो आप मेरे से वापस पूछ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर and goodbye.